हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Kashmir issue. There is the most important there Pakistan here is the Kashmir issue. At the time of partition, Jammu and Kashmir was one of the several princely state. There is a princely state. There is a fatal of which was left is uncontained in 1947. Pakistan desired that Kashmir with the Muslim majority population should be joined to the Muslim country, Pakistan. But the popular leader of the National Congress opposing Pakistan is ideology is a Maharaja Hari Singh did not take a decision until Pakistan sent the army introduced into the Kashmir Valley in October 1947 and seeking India's help to the repulsed Pakistani is introduced of Maharaja signed to the instrument of assumptions of making a Jammu and Kashmir a part of India Union. There is an Indian Union. On the occasion is the true is a Democrat. The Prime Minister Nehru is assumed that a Pakistan aggression was a clear. The future state of the state would be decided on the basis of wish of the people of Kashmir. Saying the India did not want to the open clash with the Pakistan, it's a referred the matter to the United Nations. India forced save the Srinagar from the invaded as a push it to the back to the Pakistanis from to the Kashmir Valley. But the wall of Kashmir could not be easily captured, as the would we have to mean a direct and difficult war between two new nations. India is a South United Nations help in 1948. A ceasefire is come to the implemented on January 1, 1949. It's left a large part of Jammu and Kashmir near 2/5 of the state under Pakistan is a possession and which we are called Pakistan occupy a Kashmir. There is a POK. Pakistan occupy Kashmir means POK. There is a problem create a future, and in 1950 in the UNA mediator put a forward several plan to the resolve to the depth, but there is a fail to the breast to the difference between the two countries. There is the most important here. The problem of Kashmir is still a pending. A plebiscite there was to be conducted only after Pakistan withdrew its force from the occupied territory. As per the UN resolutions of 1949, which the Pakistan refused to the comply with, is hence the India is pledged that is a wish of the people where is accelerated in 1954 in the fourth of direct election of Constitution Assembly, and which is certified the allocation of Jammu and Kashmir to India. The meditation come to end Pakistan but spread to the capture Kashmir. The thinking that is India as army was weak after the depth in their war with the China in 1962. Pakistan tried through the war to take Kashmir in 1965, but India force defeated to the Pakistan designs. The LOC mean there is a LOC. The ceasefire of line determined in 1949 was called to the LOC after 1972. Some people believe that a possible solution to the Indo-Pak problem on Kashmir is the conversions of LOC into the international boundary. Moreover, Pakistan is suffered another humiliations when it is the eastern wings. The 1,000 mile away from the West Pakistan successfully is waged independence struggle in 1971. India has played a key role in the war of the liberation of Bangladesh. The birth of Bangladesh is proved to be the final burial of the two-nation theory on the basis of which Pakistan put a claim to the Kashmir. Pakistan was reduced to 1/4 of the size of India. This is alternative to power equation in a South Asia. India is a favor. In order to the normalize to relation, India is invited to the Pakistan for an agreement, the result of which was the Simla Pact of 1972. The Simla agreement, however, the bear important significance as the two countries agreed to seek the settlement of all bilateral problems, including Kashmir, mutually without the interventions of any third party. Thus, the under is a Simla Pact
The Kashmir issue cannot be arise in the international or any other form. It thought that Pakistan has not hesitated to ignore the spirit of the agreement. The agreement also talk it about there is the return of prisoner of war, means POW. Through the Pakistan territories India is opposing was the return a new says and the fire line in place of the all says fire line of 1948 to 49 was drawn, which is known as the LOC. Pakistan found a way other than open war is the stabilizing to the India by the encouraging and the assisting of the terrorism in Punjab, and the state is a sponsor is a militancy in their Jammu and Kashmir signed mid 1980th century. The Pakistan still has continued to encourage to the terrorist and the separatist or tendency in the Kashmir. The operating the mainly form of terrorist training campus is situated in a POK. The centricity of the LOC that come to be agreed upon between India and Pakistan under similar agreement of 1972 was validated by Pakistan in May 1989 as a part of big plan. And this was done when the Pakistan force infiltrated into the India after the crossing the line of the control of Kargil. The dust of battle leak of the sector of Jammu and Kashmir India Army once again give a as we fighted a defeat in the war that is a continued for about 60 days. The purpose of Pakistan operation in a Kargil was to create a crisis with the threat of nuclear war, and which would be turned to the ensure intervention by the United States in the favor in is a Kashmir capture. Neither the United States nor China has come to Pakistan's help. In fact, Pakistan had a diplomatic and military defeat. आगे जो है कश्मीर विवाद, देखिए भारत जो है हमेशा ही कश्मीर विवादों को जो सुलझाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दो रवैये के कारण इसका कभी भी जो है विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर उन राजवारों में से एक था जिन्हें 1947 में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जितने भी राज्य हैं किसी न किसी राजवारों के अंतर्गत था, लेकिन कहते हैं बबल भाई पटेल जी के और जो है नेहरू जी के जो है कोशिशों के वजह से जो है ये काफ़ी एक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान ने इच्छा जताई कि मुस्लिम बहुल्य होने के कारण कश्मीर को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता ने पाकिस्तान को इस विचार का विरोध किया। महाराजा हरि सिंह ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जब तक पाकिस्तान ने 1947 में अपने सशक्त घुसपैठियों कश्मीर में उतार दिए। पाकिस्तान घुसपैठियों को निष्फल करने के लिए महाराजा ने भारत को सहायता मांगी और अधिकांश यंत्र पर हस्तक्षेप भी किया कि कश्मीरी भारतीय संघ का एक हिस्सा बन जाए। और इस अवसर पर एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता की तरह प्रधानमंत्री नेहरू ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध की समाप्ति घोषणा के बाद राज्य की स्थिति जो है कश्मीर वासियों की इच्छा के आधार पर तय होगी। पाकिस्तान के साथ भारत एक खुला टकराव नहीं चाहता था। अंत उसने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया। भारतीय सेनाओं ने घुसपैठियों को श्रीनगर से बचाया तथा पाकिस्तानियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया, परंतु संपूर्ण कश्मीर पर भारत द्वारा पुण्य कब्जा नहीं किया जा सका क्योंकि इसका अर्थ दोनों देशों के बीच एक आमने सामने का भीषण युद्ध होना था। इसलिए भारत ने जो है यहाँ पर इंटेलिजेंसी दिखाई और ये जो थी संयुक्त राष्ट्र की सहायता मांगी गई और इसको संयुक्त राष्ट्र को जो है सौंप दिया गया और 1 जनवरी 1949 को जो है युद्ध आराम की घोषणा भी की गई और इससे जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग राज्य का लगभग जो है 2/5वां भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में POK के नाम से जानते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाने की कई योजनाएं बनाई गई, परंतु दोनों देशों के बीच अंतर पैटर्नों में विफल रहे, यानी कभी भी इन दोनों देशों में जो है बात नहीं बन पा रही है। कहते हैं पाकिस्तान जो है सदैव कश्मीर मिल जाने के बाद भी कश्मीर के ही नाम अलापता रहता है। कहते हैं 2/5वां भाग जो है POK वो पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। आए दिन जो है आतंकवादी गतिविधियां चलती ही रहती है। कश्मीर की समस्या अब भी जो है विचाराधीन है और संयुक्त राष्ट्र के जो है 1948 में निर्णय के अनुसार पाकिस्तान द्वारा
अधिग्रहित क्षेत्र से उनकी सेनाओं को हटाने के बाद वहां पर जनमत से निर्णय लिया जाना था, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः भारत ने अपील की कि 1954 में सीधे चुनाव द्वारा इस क्षेत्र में लोगों की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाए। इसे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय संतोषजनक ढंग से कर दिया गया। मध्यस्थता के सुझाव का अंत हो गया। पाकिस्तान कश्मीरी अधिग्रहण के लिए अधीर था। यह सोच कर कि 1962 में चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना कमजोर हो गई थी, पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया, परंतु भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया। यहाँ पर बात एक आती है नियंत्रण रेखा यानी LOC। कहते हैं 1949 में निर्धारित युद्ध विराम रेखा 1972 के बाद नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि भारत पाक की कश्मीर समस्या का संभव हल इस नियंत्रण रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल देने में ही हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को एक बार और मुँह की खानी पड़ी जब उसकी पूर्वी पाकिस्तानी शाखा को जब 1000 मील दूर इसकी पश्चिमी शाखा बिग ने 1971 में स्वतंत्र संघर्ष आरंभ कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बांग्लादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया कि दृढ़ राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार के दावों का अंत था। पाकिस्तान का आकार अब घटकर भारत के आकार का 1/4 मात्र रह गया। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति समीकरण को भारत के पक्ष में कर दिया गया। देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी था। पहले बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भाषाई आधार पे बांग्लादेश को परेशान करने के कारण बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, और इससे उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने बखूबी मदद भी की और ये पाकिस्तान से अलग हो गया और एक विस्तृत राष्ट्र के रूप में अपना सम्मान बरकरार रखा। कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट था बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान से अलग होके ही वो एक अच्छा राष्ट्र बन सकता था। संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक समझौता के लिए आमंत्रित भी किया, जिसके फलस्वरूप 1972 में शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी इन बातों को सही रूपरेखा देने के लिए भारत ने मैत्रीपूर्ण संबंध हाथ बढ़ाया, जिसको शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप के बिना वे कश्मीर सहित अपनी सभी समस्याओं का परस्पर हल ढूंढ लेंगे। ये कश्मीर समझौता का यानी शिमला समझौता का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इस प्रकार शिमला समझौता के अंतर्गत कश्मीर मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में नहीं उठाया जा सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते के मूल्य तत्व को नकारते में हिचक नहीं दिखाई। समझौते के अनुसार युद्ध बंदियों को लौटने के बात कही गई थी, यद्यपि भारत ने अधिकृत पाकिस्तान क्षेत्र को लौटा दिया तथा एक नई युद्ध विराम रेखा लगाई गई। कहते हैं 1948 से 49 में खींची गई पुरानी युद्ध विराम रेखा के स्थान पर था और खींची गई जिसे नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। परंतु पाकिस्तान ने खुले युद्ध के बजाय पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देकर तथा जम्मू कश्मीर के राज्य समर्थन आतंकवादी गतिविधियों द्वारा 1980 के मध्य में से अब तक भारत को खंडित करने के रास्ते ढूंढते ही जा रहा है। और पाकिस्तान अब भी पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों द्वारा कश्मीर में आतंकवादी और पृथक करने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। नियंत्रण रेखा की पवित्रता कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, इसका मई 1999 में एक बड़ी योजना के अंतर्गत पाकिस्तान को उल्लंघन किया और यह पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कारगिल ड्रस और बैतलिक क्षेत्रों में भारत में घुसपैठ द्वारा किया गया। भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर लगभग 60 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में पाकिस्तानियों को पराजित कर दिया और कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य नाविकीय युद्ध की चेतावनी का संकट उत्पन्न करना था, जिसके द्वारा सरकार विवादों का संयुक्त राष्ट्र के पक्ष को अपने पक्ष में कराने के निश्चित करना था। सौभाग्यवश संयुक्त राष्ट्र और न ही चीन ने पाकिस्तान की सहायता की। वास्तव में पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य पराजय था। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने भी और चीन ने भी पाकिस्तान को नकार दिया था।